Today I'm starting with the next topic, that is annuity. In the simple way, you can say annuity as the installments. There are some of the installments which we pay at the end of the period, at the end of the year, not period. Some annuities we pay in the beginning, and there are some annuities or installments we pay after a period of time. If we consider a case of loan, if we have take, say, home loan, then the money which we have taken as a loan from the bank, we pay them in the form of easy installments, and these installments we start paying after the year. Like as if I have taken today as installment, I pay, loan, I pay its first installment after 1 year, then at the end of second year, then at the end of third year. Such kind of the annuities is known as the annuity due. Like I had purchased an LIC policy, I start paying its premium, and I pay its premium in the beginning of the period, in the beginning of the year. आज हम LIC पॉलिसी लेते हैं तो आज उसकी पहली किस्त पे करेंगे. Such kind of annuities is known as the annuity immediate. थर्ड के बारे में बात करें, बैंक में एजुकेशन लोन मिलते हैं. ओके, एजुकेशन लोन किसी स्टूडेंट ने लिया, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको उसकी किस्तें देनी होती हैं, इंस्टॉलमेंट देनी होती है. सच काइंड ऑफ एनुटी इज नोन एज द डेफर्ड एनुटी. बाकी दो टर्म्स अभी और हम भी डिस्कस करेंगे, इनको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ. इंट्रोडक्शन. एनुटी इज द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पेबल पीरियडिकली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एक फिक्स मनी जो हम हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पे करेंगे, पीरियडिकली पे करेंगे, जैसे 1 ईयर या मंथली या हाफ ईयरली. ओके. In short, a series of the regular payments of the fixed amount payable regularly at equal interval is called annuity. For example, payment of loan in installment, insurance installment, LIC premiums, hire purchase installments, avoiding scholarships. Annuities may be payable half yearly, yearly, quarterly, or monthly. There are the type of annuities. First one is the annuity certain, annuity contingent, perpetually or perpetual annuity. In the annuity certain, we write about the immediate annuity, annuity due और deferred annuity, जिसका डिस्कस मैं आप लोगों से कर रहा था. Annuity certain payable for the fixed number of years, either at the beginning or at the end of the period. beginning में देंगे या फिर end में. तो सबसे पहले अगर beginning देते हैं उसका नाम क्या है? Immediate annuity. If the payment of an annuity is made at the end of each stipulated interval of time, अगर हम जो भी टाइम हम दिया उसके एंड में हम पे कर रहे हैं, जैसे ईयरली पे कर रहे हैं तो ईयर के एंड में पे कर रहे हैं, सच काइंड ऑफ नोन एज द एनुटी इमीडिएट. नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन द एनुटी इज कंसीडर्ड एन इमीडिएट एनुटी. किसी क्वेश्चन में किसी एनुटी के बारे में मेंशन नहीं है कि वो इमीडिएट है या ड्यू है, तो वो इमीडिएट ही है. In case of immediate annuity, payment of first installment begins at the end of the first year and last installment paid at the end of the last year से nth year. जैसे एग्जाम्पल ये है, किस परचेज ऑन द 1st अप्रैल लोन लिया उन्होंने 2020 के अंदर, ठीक है, और आखिरी किस्त जो आ रही है वो 2030 में आ रही है, तो पहली किस्त कब आएगी? 2021 में, फिर 22 में, 23 में. आज लोन लिया तो आज ही देंगे, आज से 1 साल बाद हम जो है उसकी किस्त देंगे. एनुटी ड्यू में देखें, इफ द पेमेंट ऑफ एन एनुटी इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच टाइम पीरियड. पेमेंट हम कब दे रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ ईच टाइम पीरियड, इज कॉल्ड एनुटी ड्यू. इन केस ऑफ एनुटी ड्यू, द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर. इसमें लास्ट ईयर की बिगिनिंग में देंगे. एग्जाम्पल में देखें, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड ऑन द डेट ऑफ परचेज इटसेल्फ, जिस दिन खरीदा उसी दिन दिया है, इट इज कॉल्ड एनुटी ड्यू. जैसे 2020 में खरीदा तो पहली किस्त अभी दी है और आखिरी किस्त 30 में नहीं देंगे, 29 के एंड में कहीं आगे 30 की बिगिनिंग में ही दे देंगे. Deferred annuity, where the annuity payments begin only after the lapse of certain specified period of time. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पे करना शुरू करेंगे, इट इज कॉल्ड डेफर्ड एनुटी. ठीक है.
Therefore, if energy is deferred up to t years, it will commence at the end of the t years and first payment made at the end of the t plus 1 years. मतलब ये जिसे यहाँ देखा रखा है, आज लोन लिया फर्स्ट चैप्टर 2020 में और 31 मार्च 2025 तक नहीं पे करना, 5 साल तक नहीं पे करना। तो पहले किस्त कब जाएगी? ये A1 31 मार्च 2025 के बाद जाना शुरू होगी, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी 6 ईयर की बिगिनिंग में हो जाएगा शुरू। एनुइटी कंटिजेंट के बारे में बात करें। एनुइटी कंटिजेंट क्या होता है? एक्चुअली में कई ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है साफ तौर पे कि आपने ये प्रीमियम्स पे करने हैं। अगर मान लो किसी वजह से जिस पर्सन की LIC पॉलिसी हो रखी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पेमेंट मिलता है और उसकी जो किस्तें होती हैं वो अपने आप पे होती रहती हैं। इसको हम एनुइटी कंटिजेंट बोलते हैं। इफ द पेमेंट ऑफ एनुइटी और ड्यूरेशन ऑफ एनुइटी पेमेंट्स और बोथ आर सब्जेक्ट टू हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, द एनुइटी इज कॉल्ड एनुइटी कंटिजेंट और कंटिजेंट एनुइटी। फिर इसमें आ रहा है परपेचुअली और परपेचुअल एनुइटी, यानी कुछ ऐसा अमाउंट हमने जमा किया जिससे लगातार एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमें लाइफ भर मिलता रहेगा। जैसे कुछ पेंशन प्लान्स होते हैं लाइक दैट, या फिर स्कॉलरशिप प्लान्स होते हैं, कुछ पैसा जमा किया उससे जो पैसा आएगा उसको स्कॉलरशिप में देते रहना आगे हमेशा के लिए। ऐसी एनुइटी जिसको हम परपेचुअलिटी या परपेचुअल एनुइटी बोलते हैं। कुछ सिंबल्स यहाँ दिए हुए हैं। A सिंबल एनुइटी के लिए है, SN और M सिंबल एनुइटी ऑफ इमीडिएट या इमीडिएट एनुइटी के लिए है, V और P प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, AN प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एनुइटी, I is फॉर द इंटरेस्ट ऑन द यूनिट, R अपॉन 100, R जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, R अपॉन 100 को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए। तो सबसे पहले का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो है अमाउंट ऑफ इमीडिएट एनुइटी और अमाउंट ऑफ एनुइटी लेफ्ट अनपेड फॉर एनी ईयर्स। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है A अपॉन I 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1 वेयर I इज R अपॉन 100। ये पहला फॉर्मूला है। तो जो आज आपको पढ़ाया, यू मस्ट रीड दैट टॉपिक केयरफुली। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस कल करेंगे। अभी फर्स्ट सिर्फ एनुइटी इमीडिएट या ड्यू, सॉरी एनुइटी इमीडिएट का मैंने फॉर्मूला भी दिया है आपको। अभी इसके बाद एनुइटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यूज की फॉर्मूलेज आगे प्रेजेंट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो द things which we have studied, topics which we have studied today, read it carefully, understand it. Then we begin with a further topic. Till then, thank you.